The midnight of August 14th, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. The time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Colors of the national flag were changed at Gandhi's instance. White, green and red were replaced by saffron, standing for courage and sacrifice, white for truth and peace, green for faith and strength. The spinning wheel represented the hope of the masses. या तो यहूदियों की सिनेगॉग है, या तो ख्रिस्तियों का गिरजाघर है, और या तो सिखों का गुरुद्वारा है। सबकी रक्षा और सबके लिए आदर इतना ही होगा जितना हिंदुओं का मंदिर है। उसके पहले दिलों का हिस्सा हो गया था, तो दिलों का हिस्सा हो गया तो उसमें तो कुछ मुसलमान का भी था। ये नहीं कहूँगा कि सब मुसलमान का ही था, वो गलत बात होगी। कुछ गुनाह हिंदू ने भी किया होगा, कुछ गुनाह सिखों ने भी किया होगा, ऐसे मुसलमानों भी किया, तो तीनों गुनहगार पड़े हैं। तीनों गुनहगार में दोष बनना है। हिंदू धर्म में, सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीजों को स्थान नहीं दे सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समावेश होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. अभी कल की बात है कि हम अपने मुल्क की आजादी के लिए रो रहे थे और तमाम दुनिया में हिंदुस्तान की कौमी जागृति का शोर मच गया। क्या क्या नक्शे नहीं हैं जो हमने आजाद हिंदुस्तान को नहीं बनाए, और क्या क्या ख्वाब नहीं हैं जो हमने कौमी जिंदगी की नई उठानों को नहीं दे। आज वो सब कहाँ चले गए? क्या हमारे दिमाग के किसी कोने में भी उनकी परछाई बाकी रही? क्या उनकी बुबास भी कोई बदबख्त आब हवा में सूंघ सकता है? हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है, और एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा, और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, हमें निश्चय करना चाहिए। जितना हो सके हमसे इतना कोशिश करके आपस में मिलजुल के रहने की कोशिश करें, हमारा एक कर्तव्य है। You have supported nuclear weapons. I am dead opposed to India's nuclear weaponization. Mr. Advani considers the building a Ram temple as a nationalist project. I think it's a highly divisive project. Now, so it depends on what your perception is, what your standpoint is, what your worldview is. Mr. Ram, I don't want to take any of your agenda. You have got an agenda, you are meeting, okay? Yeah. But the agenda, what I suggest, that you can calibrate what is the national development. That is 220 million people are below poverty line. So how do you bring them up?
How do you bring them up? So that is the agenda. There may be many development going on agriculture to any subject, but agenda is very clear. 220 million people are below poverty, 22% of the people below poverty line. How do you lift them up? What contribution do you make? That's the issue. Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. Long live revolution. Long live the memory of young men who sacrificed their lifeblood for their motherland. There were many, there will be many more. One of them was Bhagat Singh. He was 24 years old when he died. ये हमारे लोकतंत्र के कुछ चरम बिंदु हैं जिन्हें देखकर कभी कभी गर्व होता है और कभी कभी डर लगता है कि ये ना होंगे तो कैसा देश होगा हमारा। It's time now for the moment of truth. चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। हम सब एक धर्म युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। शरणार्थी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, क्रिश्चियन सभी शरणार्थी भाइयों को और विशेषकर हिंदू शरणार्थी भाइयों को आश्वस्त करने आया हूँ, क्योंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी है। अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। और जब ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान 2 दर्जे का नागरिक बनेगा, और जब मुसलमान 2 दर्जे का नागरिक बनेगा तो उसके वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? राम कृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। अरे मलेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान अर्थात हिंदुओं का देश है। वादा करता हूँ कि अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन संघर्ष से बनेगा। अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे मेरे भाइयों। का चुनाव मेरे भाइयों मोदी के चरित्र बनाम बेईमानों के बीच में होना है, चरित्रवान बनाम चोरों के बीच में होना है, इस्लाम बनाम भगवान के बीच में होना है, और इटली बनाम भारत के बीच में होना है। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, हम कहां मारकाट करवा रहे हैं? हम तो शांति से रहना चाहते हैं। टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। भाजपा का विरोध करते करते इन लोगों को तो देश का विरोध करने की आदत हो गई है। पूरी दुनिया के अंदर ये सच्चाई है। ये आपकी थ्योरी हो सकती है, मेरी थ्योरी नहीं, जो सच्चाई है। बेवकूफी बंद करो ना भैया, समझ में नहीं आ रहा है। That I will withhold, that I will uphold. आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो।
क्या हो रहा भाई ये? कपिल मिश्रा को बाहर करें सदन से, बाहर करें इसको सदन से, बाहर करें सदन से इसको। जिस राष्ट्र में रहते हो उस राष्ट्र का गान और राष्ट्र के गीत के लिए यदि किसी को अपोजिशन करना हो तो बिल्कुल करे, कोई मना नहीं है, फिर वो पाकिस्तान में जाए। वंदे मातरम बहुत राष्ट्रीय भक्ति का दावा करते, सुनाइए, चलिए सुनाइए। देखिए सुजलाम सुफलाम वंदे कहाँ चलेगा, यही है, ये तो तौहीद कर रहे हैं आप, ये हामिद कर रहे हैं, आपका राष्ट्रपति का आपको एक लगेगा अभी। आप कह रहे हैं कि सब कंपल्सरी कर दे, तो आप गा के सुना दीजिए। आप सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। वंदे मातरम कहना होगा, आपको आता है पूरा वंदे मातरम? आप गा के हमें सुना सकते हैं? वो कहते हैं बहुत कठिन है, बहुतों को नहीं आता। वो कहते हैं कि बहुत कठिन है, बहुतों को नहीं आता। आपको आता है पूरा? आप वंदे मातरम सुफलाम यामलाम मातरम। टूटा फूटा गाया, आधा बीच बीच में से कई गायब है। नहीं, यही है। ऐसा है, पूरे हिंदुस्तान में हर नागरिक को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम का। साहब आप चाह रहे हैं ना कि सब सीखें, आपसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, आप सुना दीजिए गा के। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, बोलो भारत माता की। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अभी तो और भी है आगे। हाँ आगे है, वो भी एक बार गा के नहीं अभी आज इतने ही। 2 लाइनें सुना दीजिए। आपको कहना चाहता हूँ 2 लाइनें बताओ, छोड़ो। नहीं, मैं रुके 4 लाइनें सर प्लीज। मैं आप गाता है, सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता है, वंदे मातरम गाता है। मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम वंदे गा के सुना दीजिए। ठीक है, अलग से आप गा के सुना दीजिए। डिबेट छोड़ दी हमने, डिबेट छोड़ दीजिए। 4 लाइन्स सर, 4 लाइन्स प्लीज। ऐसा है, मैं तो वेट कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के सर, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप गा के सुना दीजिए। आप एग्जाम्पल सेट कीजिए ना। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी मुझे फिलहाल सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये है इनका डीएनए। If you don't know the Vande Mataram yourself, then there is a high level of hypocrisy at play. पढ़ने में पसीने आ गए। नहीं, उनका आता ही नहीं है, कहाँ गाएंगे वो? अपन है ना, आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि गाइए गाइए, आप गाइए, आप गाइए, आप देशभक्ति साइंस दिखाइए। हमने रिक्वेस्ट किया भाई आप गा के सुना दीजिए वंदे मातरम। पसीने फूल गए मंत्री जी के। I present to you my friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. He's a great gentleman and a great leader. And I remember India before, now not intimately, but I remember India before, and it was very torn. There was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together. Like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. We'll call him the father of India. I think that's not so bad. भारत माता की जय बोलते ही तन मन खड़ा हो जाता है कि नहीं खड़ा हो जाता है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे विधाता जय हे जय हे जय हे